Hello everyone, this is Anjali, your business studies subject teacher. Today we are going to share a new topic, chapter number 7, Sources of Business Finance, in which we are going to study what are the various modes, what are the various sources through which a businessman can raise finance. So there are, on the basis of ownership, there are the two types of the funds, owners fund and board funds, and we can raise our funds through these funds, right? So first is, if we will talk about the owners funds, we are having the categorization which includes equity shares, preference shares, retained earnings, GDRs, ADRs, IDRs. Similarly, on the other hand, borrowed funds, in which includes debentures, loan from financial banks, loan from commercial banks, public deposits, trade credit, intercorporate deposits, right? So in this lecture we are going to study what do you mean by share, what are the various types of shares, and what are the various features and merits and demerits of shares. So our topic is shares. So through the issue of shares we can raise our funds. This is concerned with the owners fund, and this is a long term source of finance. How this is a long term source of finance? एज यू नो, अगर कंपनी ने जब भी अपने फंड्स को रेज़ करना है तो वो शेयर्स के थ्रू अपने फंड्स को रेज़ कर सकता है, और जब भी वो शेयर्स के थ्रू अपने फंड्स को रेज़ करता है तो ये उसके लिए क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है. लॉन्ग टर्म क्यों? बिकॉज वट एवर द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ऑनर, दैट विल बी द परमानेंट कैपिटल. इट विल बी फॉर लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक वो कैपिटल, वो पैसा बिजनेस में ही रहेगा. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. And shares is a part of the owners fund. Why it is a part of owners fund? Because shares refers to basically the amount which are the contributed by the owners of the business. So that's why it is known as owners fund, right? So here the definition is given. Share is the smallest unit in which the owners capital of the company is divided, which means जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, मीन्स जो भी शेयर्स बाय करने वाले होते हैं, हम उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स. और कंपनी में शेयर्स की फॉर्म में कितना पैसा आया है, हम उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल. सपोज एक कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने शेयर्स के थ्रू, उसके पास अमाउंट है 20 लाख. 20 लाख उसके पास अमाउंट आई, और वो 20 लाख अमाउंट कैसे बनी है, 2 लाख उस कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं और 10 का ईच है. सो यू कैन से दैट 20 लाख रुपीज़ आ गए, राइट? इसमें बोला गया है शेयर एक स्मॉलेस्ट यूनिट है इन विच ऑनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड. अगर हम बात करें कि एक शेयर हमारा कितने का है, अगर हम पूरी शेयर कैपिटल को 20 लाख को डिवाइड बाय 2 लाख कर देंगे तो हमारा जो शेयर की एक वैल्यू आती है, दैट विल बी द 10 रुपीज़. सो यू कैन से दैट अगर हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि हम ऑनर्स की कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उसमें जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, दैट इज़ नोन एज ए शेयर. शेयर इज़ बेसिकली अ सर्टिफिकेट, अ काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट. The process will be the investors, those who want to invest their money, they will get shares and they have to pay that amount. And what will be the benefit for the investor? Whatever the amount they are investing, they will get surely return, right? On the other hand, what will be the benefit to the company? As company has a shortage of funds, so company needs to raise their finance. They can issue the shares, they can you can say invite the applications, and after that they will get money, right? And they have to give the return after some time.
विच मीन्स लेटर ऑन। सो बेनिफिट है ये कंपनी के लिए कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है, दे आर एबल टू रेज देयर रिफंड्स विद द हेल्प ऑफ द शेयर्स, राइट। सो शेयर इज बेसिकली अ स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, शेयर कैपिटल को जब हम डिवाइड करते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट आता है दैट इज नोन एज अ शेयर। वन थिंग मोर यू कैन ऐड, दिस इज अ सर्टिफिकेट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट। Those want to invest in shares, they will give the, you can say, they will invest the amount and they will become the owners of the company, right? Next is, there are two classes of shares, equity shares and preference shares. Equity shares are basically the real owners, shareholders are the real owners of the company. Who will buy? Those will buy the shares, they will treat as shareholders, and equity shareholders are considered as real owners of the company, right? So why they are known as real owners of the company? Because equity shares holders के पास कोई भी स्पेशल राइट, कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता in case of the payment of dividend. So equity shares are those shareholders in which they are not having preferential right in case of dividend and repayment of capital, which means whenever there will be a term arise, that is a dividend. As we all know, if we will talk about a loan, whenever we take a loan we have to pay interest, but if we are investing in shares, in that case we will get return, that return is known as dividend, okay, this is known as dividend. So they are talking about equity shares that they will not enjoy the dividend firstly priority basis, preference basis, no, they are not having preferential right related to the dividend. First of all, we have to give the dividend to preference shareholders, our second class of the shares. After that, equity shares will get over the leftover amount, right? So no, they are not having any preferential right, but they are the real owners of the company. Thirdly, they are having voting rights, they are having voting rights. Whenever the company will end, whenever the company will liquidate, whatever the amount will be left, that amount will be given after paying to all the parties. लास्ट में जो भी अमाउंट बची वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है, ओके। तो इसके हमने 3 पॉइंट्स किए। फर्स्ट पॉइंट इसमें किया हमने कि जो भी इक्विटी शेयर्स को बाय करता है, दैट पर्सन इज नोन एज इक्विटी शेयर होल्डर एंड ही विल बी कंसीडर्ड एज रियल ओनर ऑफ द कंपनी। सेकेंड है, दे आर नॉट हैविंग द प्रेफरेंशियल राइट्स एज प्रेफरेंस शेयर्स हैव। प्रेफरेंस शेयर्स के पास दोनों ही केस में, डिविडेंड के केस में भी और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मीन्स जब भी पैसा जो आपने पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया, तो आपको उस पैसे का रिटर्न कब मिलेगा? अगर आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब सबको पेमेंट कर दी उसके बाद आपको पेमेंट मिलेगी, मतलब आपको प्रेफरेंस नहीं है, आपको प्रायोरिटी नहीं गिवन है। थर्ड, we are having here the voting right. Obviously if you are a real owner, whatever the company wants to take decision, then company must take your consent, your approval, are you agree or disagree, everything should be considered, okay. So next are saying there are the 2 categories of equity shares as per Companies Act. So equity shares with the equal rights, obviously नेम से ही क्लियर है कि जिसमें इक्वली राइट्स दिया जाएगा सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एंड नेक्स्ट है इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड। तो डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड मीन्स अलग अलग डिविडेंड दिया जाता है इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में सबको इक्वल राइट है, जो एक के लिए टर्म कंडीशन अप्लाई है अदर्स के लिए भी अप्लाई होगी। एंड दूसरे में क्या है, डिफरेंशियल राइट्स मिलेंगे विच मीन्स अलग अलग राइट दिए जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्राइमरी रिस्क बेयरर। प्राइमरी रिस्क बेयरर का मतलब सबसे पहले रिस्क लेने वाला। सबसे पहले रिस्क लेने वाले का मतलब क्या होता है, इसमें है कि
जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है सारा का सारा रिस्क उन्हीं के ऊपर है। कैसे? अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो उस केस में कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को जो प्रॉफिट का पोर्शन है, वो प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं तो कंपनी उनके साथ उनको कोई भी डिविडेंड नहीं देगी। तो ये एक रिस्क बेयरर है, सबसे पहला रिस्क इनका ही है। क्लेम ओवर रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल मीन्स जो बची कुची इनकम है उसके ऊपर क्लेम किसका होता है? इक्विटी का। तो जब भी सपोज करते हैं कंपनी को 20,000 प्रॉफिट हुआ, 20,000 प्रॉफिट में से उसने सबसे पहले अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है। क्रेडिटर्स मीन्स जिसको उसने पैसे देने थे, जो उनके ऊपर लीगल लाइबिलिटी है, तो उनको सारी पेमेंट वो कर देंगे। उसके बाद आती है टर्न, सबको पे करने के बाद आती है टर्न प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी और उनको पेमेंट की जाएगी। एंड लास्ट में अगर कोई अमाउंट बची है, जैसे 20,000 में से 10,000 आपने ऐसे ही दे दिया टू लैंडर्स एंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, एंड आफ्टर द 10,000 अगर बचा है, जितनी अमाउंट बची है उस अमाउंट पर ही कॉन्ट्रीब्यूशन पर जो मेन राइट होगा वो किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, राइट। Next is a basis for loan. You can take a loan on the basis of that because it will increase your credit worthiness. If your company share capital is high, in that case what will be happen? In that case जो बैंक, जो lenders है, जो लोन देने वाले हैं, जो suppliers है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपकी तरफ बढ़ेगा, उनका ट्रस्ट होगा कि आप उनको पे कर देंगे। बेसिकली your credit worthiness will increase. Next, control. Obviously, if equity shareholders having voting rights, then they can control the different affairs of the organization. So they are having control over the activities of the company. Next, higher profit. Rate of the interest for debenture holders and the rate of the dividend for the shareholders are fixed. They are saying कि in case कि जैसे कि कंपनी को एक साल में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, सपोज करते हैं 2 लाख प्रॉफिट हो गया, 2 लाख में से कंपनी ने 10 या 20,000 ही अपने लैंडर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उन दोनों का फिक्स होता है, उनका जितना फिक्स है उनको उतना ही मिलना है, तो उनको पे कर दिया। हमारे पास लास्ट में जो अमाउंट बची है वो है 1 लाख। कहाँ मैंने जो पुरानी वाली आपको एग्जांपल बोली थी 20,000 वाली, उसमें 10,000 बच रहा था। यहाँ पर 1,20,000 में से लाइबिलिटी तो हमारी फिक्स रहेगी ना, जैसे कि अभी आपको बोला गया कि डिबेंचर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स अमाउंट ही मिलती है, तो उनको फिक्स अमाउंट दे दी 20,000 एंड उसमें से देखा जाए तो हमारे पास अभी भी 1 लाख बच गया। तो उस 1 लाख कहते हैं कि जिस टाइम ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, प्रॉस्पेरिटी के टाइम पर, ग्रोथ के टाइम पर इनको ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज प्री एम्प्टिव राइट। प्री एम्प्टिव राइट मीन्स प्रायोरिटी बेसिस इनको राइट दिया गया है कि ये क्या कर सकते हैं, कंपनी के और भी शेयर्स बाय कर सकते हैं। वो कैसे? व्हेनेवर द कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स, जब भी कंपनी एक नए शेयर्स अपने इशू करेगी, दे हैव टू गिव द प्रेफरेंस, दे हैव टू ऑफर दीज शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, दोज शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पहले से ही हैं उनको पहले ऑफर करने पड़ेंगे कि क्या आप और बाय करना चाहते हैं या नहीं। तो उनको अगर पहले ऑफर किया जाता है, दैट इज नोन एज प्री एम्प्टिव राइट। ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट इज कंसर्न्ड विद द प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर बेसिकली वो शेयर्स हैं जो कि इक्विटी शेयर्स नहीं हैं। प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि उनको इक्विटी से पहले डिविडेंड दिया जाता है, पेमेंट की जाती है डिविडेंड की, बट क्रेडिटर्स के बाद ही की जाती है, बट इक्विटी से पहले की जाती है। एंड रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स कैपिटल, वट एवर द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दैट अमाउंट विल बी रीपेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप बिफोर paying to the equity shareholders. This is the advantage, right? Next is features. Feature is that first there is a fixed rate of dividend. Yes, the rate will be fixed. For equity shareholders, rate is not fixed. Whatever the leftover amount, residual amount, the amount will be distributed among the equity shareholders. But for the preference shareholders, fixed rate of dividend will be given. Next, no security. As we know, if we are talking about the shares, then there is no need to you can say pledge a security against the capital. Next, voting right. They are not having voting right. Only equity shareholders enjoys the voting right. But
इन केस ऑफ यू कैन से नॉर्मल कंडीशन नहीं है, स्पेसिफिक कंडीशन है, 2 ईयर्स से ज़्यादा से उनको डिविडेंड ही नहीं मिला, इन दैट केस वहाँ पर उनका वोटिंग राइट हो सकता है। Next, this is a hybrid security. Hybrid security means it is a combination of security, it is a mixture of security, which means कि यहाँ पर अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो प्रेफरेंस में इक्विटी शेयर होल्डर्स के भी फीचर्स हैं और डिबेंचर्स के भी। कैसे? अब इक्विटी शेयर्स ओनर्स फंड होता है और प्रेफरेंस शेयर्स भी ओनर्स फंड होता है, राइट? तो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको भी हम ऑनर ही मानते हैं, पर रियल ऑनर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। एंड एज वी नो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है एंड डिबेंचर्स के केस में भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो रेट अगर फिक्स है तो यू कैन से दैट दोनों के एडवांटेजेस, दोनों के फीचर्स इसमें इन्वॉल्व है। दैट्स वाई प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज हाइब्रिड सिक्योरिटी। So that's all for today. Thanks for watching video.